Hello everyone. In this video, I am doing the solutions of brain teasers of chapter number 9, and the name of the chapter is linear equations in one variable. Now, in previous videos, I had done the questions up to question number 3. In this video, I will do the solutions of two questions 4 and 5. Before I start the solutions, I would like to request you that if you are really liking the videos and the way explained in the questions, and you are understanding that these are done in the easiest way, you must subscribe the channel so as you can get the regular updates of the videos uploaded on daily basis, and it can help you to do the questions in the most easiest way. Now, question number 4. I am reading the statement showing the book. See here. 5 years ago, a mother was 7 times as old as her daughter. I repeat, 5 years ago, a mother was 7 times as old as her daughter. So, before in hand only, we will give heading 5 years ago. Ago means pehle. 5 years ago. What is written? Mother was 7 times as old as daughter. So we do not know the age of daughter. So I have written let age of daughter. And this let age of daughter is 7 years ago. So I have written X years. Therefore, age of mother. For age of mother, what is written in question? That the mother was 7 times. So it will be 7x years. Now, suppose 7 years ago I was 22 years old. Then today, what will be my age? 22 plus 7. Similarly, I will write here present age of daughter. Present age of daughter. So, in this age, I will add. This is 5 years ago. In this age, I will add plus 5, x plus 5 years. Now, similarly, we will find present age of mother also. Present age of mother. So, in 7x, we will add 5. It will be 7x plus 5 years. Now, further, let's read the question. It is written 5 years hence. Hence का मतलब होता है आगे, 5 साल आगे. She will be 3 times as old as her daughter. अब आप हेडिंग दे दोगे 5 years hence. 5 years hence. Hence का मतलब होता है आफ्टर. 5 years hence एज ऑफ डॉटर. तो 5 साल बाद जो है वो डॉटर की एज क्या हो जाएगी? आप प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर दो. x प्लस 5 प्लस 5, राइट. तो ये बन जाएगी x प्लस 10 ईयर्स. इसी तरह से आप एज ऑफ मदर भी निकाल सकते हो. 5 years hence मीन्स 5 years later. कैसे? 7x प्लस 5 में 5 ऐड कर दो ईयर्स, एंड इट इज 7x प्लस 10 ईयर्स. अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट ही हैज गिवन इन द क्वेश्चन. पहले क्या करो, एज ऑफ डॉटर ऐसे लिख लो, बीच में कोई साइन ना लगाओ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके 7x प्लस 10 लिख दो. ये एज किसकी है? डॉटर की है. 5 years हैंस मतलब 5 साल बाद. और ये एज जो है वो मदर की है 5 साल बाद. क्या बोला उसने क्वेश्चन में? 5 years हैंस शी विल बी 3 times एज हर डॉटर. यानी मदर जो है वो 3 times हो जाएगी अपनी डॉटर की. इट मीन्स मदर इज ऑलरेडी 3 times. इक्वल करने के लिए आपको डॉटर की एज का थ्राइस करना पड़ेगा, 3 times करना पड़ेगा. अब आप इसको सॉल्व करो. 3x प्लस 3 10s are 30. 7x प्लस 10
अब आप x की टर्म्स को एक तरफ कर लो, 3x माइनस 7x, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर दो, 10 माइनस 30। तो 3x में से 7x माइनस करें तो माइनस 4x आता है। यहाँ 10 माइनस 30 जो है माइनस 20, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब उसने पूछा है प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ। तो देखो डॉटर की प्रेजेंट एज क्या थी, x प्लस 5 थी। तो अब आप लिखोगे देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू x प्लस 5 का मतलब है 5 प्लस 5 ईयर्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 है। तो 5 प्लस 5 क्या आएगा 10 ईयर्स। इसी तरह से आप प्रेजेंट एज ऑफ मदर भी फाइंड आउट कर लो। प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या थी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऊपर देखो यहां पर 7x प्लस 5। तो 7x का मतलब x मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लाइड 5 प्लस 5। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 7 5 जार 35 प्लस 5, 35 प्लस 5 क्या हो जाएगा 40 ईयर्स। तो मदर की एज बन गई 40 ईयर्स। होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आप 2-3 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो देखो, द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द डिजिट एट टेंस प्लेस। इसका मतलब हमें वंस प्लेस के ऊपर डिजिट नहीं पता, उसने बोला वंस प्लेस की डिजिट जो है वो टेंस प्लेस वाली डिजिट की 4 टाइम्स है। तो एज्यूम करते हैं, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस की डिजिट क्या एज्यूम कर लें, x कर लेते हैं। देयरफॉर डिजिट एट वंस प्लेस, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि डिजिट एट वंस प्लेस इज 4 टाइम्स, तो 4x हो जाएगी। अब आप बनाओगे ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, टेंस का मीनिंग 10, 10 विल मल्टीप्लाई x, प्लस द मीनिंग ऑफ वंस इज 1, 1 will multiply 4x. So 10 into x is 10x plus 4x. So 10 plus 4 कितना बना 14x। फिर आगे बारी आती है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो अब आप हेडिंग देते हो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। जब आप डिजिट्स को रिवर्स करते हो तो डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस के ऊपर कौन सी डिजिट आ जाएगी, जो पहले वंस के ऊपर थी। तो आप देखो पहले वंस के ऊपर क्या थी 4x थी, तो यहां आ जाएगी वो टेंस पे। एंड डिजिट एट वंस प्लेस, वंस पे वो आ जाएगी जो पहले टेंस के ऊपर थी, यानी x। अब आप बनाओगे न्यू नंबर, न्यू नंबर प्रोसीजर वही 10 इंटू 4x प्लस 1 इंटू एक्स। सॉल्व करो, 10 4 जार 40x प्लस x, 40x प्लस x कितना x बना 41x। अब आगे सुनो क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 54। अब आप करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने ये 14x लिख लिया और यहां लिख लिया 41x। बोला ये जो नंबर आया नए वाला, ये गिवन नंबर से यानी इससे कितना इंक्रीज हो जाता है 54, ये इंक्रीज हो जाता है 54। तो आप इक्वल करने के लिए गिवन नंबर में 54 ऐड करो। अब आप x के टर्म्स को एक तरफ ले आओ, 14x माइनस 41x, 54 राइट पे चला जाएगा माइनस 54। अब आप सब्ट्रैक्शन करो, 11 माइनस 4 इज 7, 3 माइनस 1 इज 2 बट माइनस 27x
एंड इट इज -54। अब इसमें से माइनस और माइनस कैंसिल कर दो। x इज इक्वल टू 54/27। ये डायरेक्ट कट जाता है। 27 1s आर 27 2s आर 54। तो कितना आया आपके पास? x2 आया। अब उसने पूछा फाइंड द गिवन नंबर। गिवन नंबर का मतलब है ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, उसी को गिवन नंबर बोलेंगे। क्या था आपके पास ओरिजिनल नंबर? ये देखो 14x था ना, सो इट विल बी 14 इंटू 2 28। अगर वो बोलता फाइंड द नंबर्स तो आप न्यू नंबर भी निकाल देते 41 इंटू 2 करके। अगर उसने पूछा ही नंबर है तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर आएगा। इसका मतलब आपको ओरिजिनल नंबर ही निकालना है। नंबर्स तब निकालना है जब उसने दोनों पूछे हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड both the questions, question 4 and 5. To get the regular updates of video, you must subscribe the channel, like the video and comment also. Thank you.